اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 11th السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اسٹیٹس آف میٹر پڑھ رہے ہیں، تو اسٹیٹس آف میٹر میں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہاں 11th کلاس میں ہمیں گیشیس اسٹیٹ اور لیکوڈ اسٹیٹ پڑھنا ہے۔ سالڈ اسٹیٹ ہم 12th میں جا کے پڑھیں گے۔ تو گیشیس اسٹیٹ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی۔ تو کل ہم نے لیکویفیکیشن آف گیسز اور کرٹیکل ٹیمپریچر کے بارے میں پڑھا۔ تو دیٹ واز دا لاسٹ ٹاپک ان گیشیس اسٹیٹ۔ تو آج سے ہم لیکوڈ اسٹیٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جہاں تک لیکوڈس کا تعلق ہے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ لیکوڈ اسٹیٹ جو ہے اٹ از این انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ بٹوین سالڈس اینڈ گیسز۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سالڈس جو ہوتے ہیں، سالڈس میں کانسٹیٹوئنٹ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں دے آر ویری کلوزلی پیکڈ بیکاز آف اسٹرانگ انٹر پارٹیکولر فورس آف اٹریکشن۔ اس کے برعکس جو گیسز ہوتے ہیں، گیسز میں کانسٹیٹوئنٹ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں دے آر اوے فرام ایچ ادر، دے موو رینڈوملی in all possible directions on the zigzag path. There are negligible force of attraction between the molecules or particles of the gases. تو اس کے برعکس جو لیکوڈس ہوتے ہیں، لیکوڈس میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ سالڈس کی طرح زیادہ کلوزلی پیکڈ نہیں ہوتے ہیں، اور گیسز کی طرح وہ لوزلی بھی پیکڈ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکوڈس میں مالیکیولز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے دیٹ از انٹرمیڈیٹ بٹوین سالڈ اینڈ گیشیس اسٹیٹ، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے لیکوڈس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ بھی انٹرمیڈیٹ ہیں بٹوین سالڈس اینڈ گیسز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سالڈس جو ہیں دے ہیو ڈیفینٹ شیپ اینڈ ڈیفینٹ والیوم۔ اس کے برعکس جو گیسز ہیں دے ہیو نیدر ڈیفینٹ شیپ نور ڈیفینٹ والیوم، یعنی اپنا والیوم بھی چینج کرتے ہیں اور اپنی شیپ بھی چینج کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لیکوڈس ہیں، لیکوڈس ہیو نو ڈیفینٹ شیپ۔ آپ جانتے ہیں، یہ آپ کو میں صرف یاد دلا رہا ہوں، آپ نے پہلے یہ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ لیکوڈز جو ہوتے ہیں ان کی شیپ جو ہے دیٹ ڈپینڈس اپان دا شیپ آف دا کنٹینر۔ آپ جس کنٹینر میں لیکوڈ کو ڈالو گے یہ لیکوڈ اسی کنٹینر کی شیپ اختیار کرتا ہے۔ اٹ مینز اٹ ہیز نو ڈیفینٹ شیپ بٹ ہیز ڈیفینٹ والیوم۔ مگر جو والیوم لیکوڈس کا ہے وہ ڈیفینٹ ہوتا ہے، یعنی وہ ڈیفینٹ مینز والیوم اس کا چینج نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر ایک 500 ml کا کوئی بیکر لیتے ہیں، اس کو سپوز آپ کمپلیٹلی فل کرتے ہیں، دیٹ مینز اس میں جو لیکوڈ ہے اس کا والیوم 500 ml ہے۔ اب اگر آپ اسی لیکوڈ کو کسی دوسرے کنٹینر میں، دوسرے بیکر میں ڈالو گے جس کا والیوم سپوز 1 لیٹر ہوگا، تو وہ بیکر فل نہیں ہوگا، دیٹ ول فلڈ اپ ٹو دا ہاف، نصف تک وہ بیکر بھر جائے گا، یعنی 500 ml جگہ وہاں پر بھی یہ لیکوڈ گھیر لے گا۔ اس کا مطلب ہے لیکوڈ کا والیوم جو ہے وہ ڈیفینٹ ہے۔ بس اس کی وجہ صرف یہ ہے جو فورس آف اٹریکشن بٹوین دا پارٹیکلز ہیں وہ دراصل انٹرمیڈیٹ ہیں، نہ وہ سالڈس کی طرح زیادہ اسٹرانگ ہیں اور نہ لیکوڈ گیسز کی طرح زیادہ نیگلیجبل ہیں۔ تو لیکوڈز جو ہیں ان میں جو فورسز آف اٹریکشن دے آر انٹرمیڈیٹ between solids and gases. That is, they are neither stronger like solids nor they are weaker, rather negligible like gases.
these force of attraction between the particles of the liquids, they are intermediate, neither too strong nor too weak. So it is because of because of these interparticular forces, interparticular forces, that these liquids take, or rather opt the properties intermediate between solids and gases. तो जहाँ तक ये जो लिक्विड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक जहाँ तक है, जैसे मैंने बता दिया दो प्रॉपर्टीज़, इनकी डेफिनेट शेप है, इनका डेफिनेट वॉल्यूम है। इनकी एक और प्रॉपर्टी आप देखिए, जब आप गैसेस के साथ कंपेयर करेंगे तो जहाँ तक इनकी डेंसिटी का ताल्लुक है, इनकी डेंसिटी जो होती है दैट इज़ हायर देन दैट ऑफ गैसेस, हायर देन दैट ऑफ गैसेस। इनकी डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा होती है, गैसेस की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर आप कंप्रेसिबिलिटी आप देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी गैसेस में आपने पढ़ा है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आपको याद होगा मैंने कहा था आपको, अगर आप सिरेंज में, किसी सिरेंज में अगर आप कोई गैस लेंगे, एयर लेंगे, तो फिर पलंगर ऊपर बाहर का जो नोजल है उसको हम बंद करेंगे भाई और फिंगर टिप, तो पीछे से जो आपका पलंगर या पिस्टन है उसको दबाइए, उस पर फोर्स अप्लाई कीजिए, प्रेशर अप्लाई कीजिए, तो वो बहुत हद तक कंप्रेस हो जाता है। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। उसके बरक्स अगर हम इसी सिरेंज में पानी लेंगे, बाहर का नोजल बंद करेंगे, ऊपर से पलंगर को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो लिक्विड है ये कंप्रेस नहीं होता है। अगर हो भी जाएगा तो a very little extent, they are compressible to a very small extent, they are not highly compressible, rather they are not compressible like gases. इसी तरह से इनकी एक और प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, डिफ्यूजन जो है आप देख रहे हैं, डिफ्यूजन की एग्जांपल्स में हमने गैसेस की भी एग्जांपल ली है, लिक्विड्स की भी एग्जांपल है। गैस की एग्जांपल ये है कि अगर हम किसी कमरे में एक कोने में इंसेंसिटिक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उस अगरबत्ती का धुआं जो होता है वो सारे कमरे में फैल जाता है। यानी उसका जो फ्रेगरेंस है, जो स्मेल है, वो अगर एक कोने में हम उसको जलाते हैं तो दूसरे कोने में हम इसकी फ्रेगरेंस महसूस कर रहे हैं। वो इस वजह से कि इस इंसेंसिटी के जो गैसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सारे कमरे में फैल जाते हैं। या हम ये कहेंगे कि जो स्मोक प्रोड्यूस होता है बाय इंसेंसिटिव, वो स्मोक एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये इंटरमिक्सिंग ऑफ स्मोक ऑफ इंसेंसिटिक एंड एयर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो इसी तरह से लिक्विड्स की एग्जांपल ऑफ लेते हैं। आपको याद होगा अगर हम एक कप ऑफ वाटर लेंगे, ए कप ऑफ वाटर, इस कप ऑफ वाटर में अगर हम फाउंटेन पेन से एक ड्रॉप इंक का डाल देंगे तो ये इंक जो है आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ये इंक जो है ये सारे पानी में फैल जाता है, सारे पानी का रंग फिर इंक जैसा हो रहा है। ये इस वजह से क्योंकि जो इंक है इट डिफ्यूज, इंक भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो दो लिक्विड्स आपस में डिफ्यूज हो गए, मगर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्लो है। इन केस ऑफ लिक्विड्स रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लो। यानी प्रॉपर्टी जो है वो वही है जो गैस की प्रॉपर्टी है, मगर फर्क ये है कि गैस में डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन आहिस्ता से हो रहा है। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल हैं, लिक्विड्स कम कंप्रेसिबल हैं। गैसेस जो है इनकी डेंसिटी कम है, लिक्विड्स की डेंसिटी ज़्यादा है। गैसेस में न तो डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, तो लिक्विड्स में भी डेफिनेट शेप नहीं है मगर डेफिनेट वॉल्यूम है। तो इन प्रॉपर्टी से पता चल जाता है कि जो गैसेस हैं, ये जो लिक्विड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो गैस जैसी प्रॉपर्टीज ही हैं। जैसी प्रॉपर्टीज गैसेस में है ऐसी प्रॉपर्टीज लिक्विड्स में भी है, मगर लिक्विड्स में उन प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जहां तक लिक्विड्स का ताल्लुक है, लिक्विड स्टेट में हमें एक्चुअली इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स डिस्कस करनी है। तो इन प्रॉपर्टीज में हमें लिक्विड्स की तीन प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है।
एक प्रॉपर्टी जो है लिक्विड की, जो हमें यहाँ पर इस वक्त डिस्कस करनी है, दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है ये एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, ये प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है इन डिटेल। और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये दूसरी प्रॉपर्टी है लिक्विड की, ये हमें डिस्कस करनी है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है दैट इज विस्कोसिटी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमें लिक्विड स्टेट में डिस्कस करनी है एज पर आवर सिलेबस। तो ये तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हमारा जो ये लिक्विड स्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी के साथ फिर ये सारा यूनिट कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए हम आज इसकी पहली प्रॉपर्टी लेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। ये प्रॉपर्टीज़ मैंने इसलिए बता दी क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं और इसके बारे में आप जानते थे। ये मैंने सिर्फ इसलिए रिपीट की ताकि आपको पता चले कि हम किन सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, लिक्विड्स के बारे में जो इंटरमीडिएट स्टेट हैं बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। तो आज की प्रॉपर्टी जो है दैट इज वेपर प्रेशर। बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है, आप आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड करोगे, कोई मुश्किल चीज़ अंडरस्टैंड करने की नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो वेपर प्रेशर अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक इवैक्यूएटेड कंटेनर इस्तेमाल करना है। इवैक्यूएटेड कंटेनर, तो इवैक्यूएटेड कंटेनर में क्या करना है, इस कंटेनर के साथ हमें एक मानोमीटर भी अटैच करना है। ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में आप कहिए इसमें हमने दो होल्स रखने हैं, एक होल ये है, दूसरा होल ये है। तो ये जो दो होल्स या ओपनिंग्स हैं, एक ओपनिंग जो है इसको हम कनेक्ट करेंगे टू ए वैक्यूम पंप और दूसरी ओपनिंग जो है इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस लिक्विड इन इट। तो मैंने कहा यहाँ से हमने इस कंटेनर में कनेक्ट करना है मानोमीटर। मानोमीटर के बारे में आप पहले ही जानते हैं, मानोमीटर जो होता है इट इज़ ए यू शेप ट्यूब विथ वन लिम्ब ऑफ द ट्यूब लॉन्गर देन द अदर। इसमें हम मरकरी लगाते हैं। तो ये जो मरकरी होता है ये एक्चुअली हमें प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द कंटेनर दिखाता है कि कितना है, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ये जो याद रख लेना, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये वैक्यूम होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो अगर हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में जितना भी एयर है हम इसको रिमूव करेंगे। जब हम एयर को रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है अब इस कंटेनर में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही कंटेनर को हम इवैक्यूएटेड कंटेनर कहते हैं, यानी वो कंटेनर जिसमें से सारा एयर बाहर निकाला गया हो, अंदर वैक्यूम क्रिएट किया होगा। तो वैक्यूम कैसे क्रिएट होगा, जब हम वैक्यूम पंप के जरिए एयर बाहर निकालेंगे। अब क्या करना है हमें, ये जो ओपनिंग है यहाँ से हम इस कंटेनर में पानी या कोई दूसरा लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर आपको नोट करना होगा इस इवैक्यूएटेड कंटेनर में डाल देंगे, ठीक। तो पहले इस कंटेनर में कुछ भी नहीं था, एयर भी नहीं था। अब हमने वाटर इंट्रोड्यूस किया तो इसके ऊपर जो स्पेस इस वक्त है ये स्पेस खाली है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इवैक्यूएटेड कंटेनर में हमने वाटर लिया यानी लिक्विड लिया, ऊपर स्पेस खाली है। आप जानती है जो वाटर है इट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जैसा कि आपने ऊपर भी देख लिया, इन वाटर मॉलिक्यूल्स में स्पेस होती है। तो स्पेस होने के सबब ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो एक जैसी नहीं होती है। इनकी वाटर मॉलिक्यूल जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ डिफरेंट। या पहले से जानते हैं सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और कुछ ऐसे जिनकी कम है। अब जो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा तेज़ मोशन करते होंगे, जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन। तो जिनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्ट मूव करते होंगे और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो मॉलिक्यूल आहिस्ता से मूवमेंट करते होंगे।
मोशन करते होंगे। तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ग्रेटर है, लार्जर है, वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ड्यू टू देयर हाई काइनेटिक एनर्जी, एस्पेशली द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं, इनमें से वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी दे समटाइम्स एस्केप इनटू द स्पेस। वो मॉलिक्यूल स्पेस में चले जाते हैं। जैसे आपने वैसे भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, किसी पॉन्ड में पानी होता है तो वो पॉन्ड फिर आहिस्ता आहिस्ता गुजरते वक्त के साथ साथ वो पानी खुश्क हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इस पानी में से, पॉन्ड में से पानी इवापोरेट होकर बाहर एयर में चला जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। जो वाटर यहाँ पर है, वो वाटर जो होगा आहिस्ता आहिस्ता इसमें से मॉलिक्यूल इवापोरेट होते जाएंगे, दे विल गो इनटू द स्पेस। जो ऊपर स्पेस है इसी में चले जाएंगे। अगर ये बंद स्पेस ना होती तो हवा में चले जाते, चूंकि कंटेनर क्लोज्ड है इसलिए ये मॉलिक्यूल जो एयर के हैं ये यहीं पे रहेंगे, वेपर्स के मॉलिक्यूल इसी स्पेस में रहेंगे। क्योंकि जब लिक्विड वेपर में तब्दील हो गया तो ये जो वेपर के मॉलिक्यूल हैं, अब ये गैसियस स्टेट में तब्दील हो गया, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स भी तो रैंडमली मोशन करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है ये रैंडम मोशन करते हैं। तो उस रैंडम मोशन के दौरान ये आपस में भी टकराते हैं, and they collide with the walls of the container and some of the molecules will collide with the surface of the liquid। तो मॉलिक्यूल जो इन द स्पेस हैं, स्पेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो उसी डिफरेंट डायरेक्शंस की मोशन का नतीजा है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो वापस इस लिक्विड सरफेस के साथ टकरा रहे हैं। जिस वक्त मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस के साथ टकरा रहे हैं तो ये लिक्विड जो है ये इन मॉलिक्यूल्स को फिर से कैप्चर करता है, पकड़ता है। तो पहले क्या हुआ था, मॉलिक्यूल जो थे लिक्विड में से चेंज हुए थे इनटू वेपर्स, तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। पहले तो इवापोरेशन हो रही थी, लिक्विड मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे थे इनटू वेपर्स। अब क्या हो रहा है कि ऊपर से जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं वो वापस इस लिक्विड सरफेस के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो फिर से वापस लिक्विड में तब्दील हो रहे हैं। तो इस तरह से कंडेंसेशन हो रही है। वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन है, और लिक्विड का वेपर में तब्दील होना इवापोरेशन है। तो इस तरह से इस बंद कंटेनर में दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, एवापोरेशन भी हो रही है, कंडेंसेशन भी हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि रिवर्स प्रोसेस हो रही है, रिवर्स प्रोसेस हो रही है। अब देख लीजिए यहाँ पर फिर से, जिस वक्त ऊपर इस स्पेस में कोई भी गैस मॉलिक्यूल वेपर्स नहीं थे, तो ये जो मानोमीटर है इसमें दोनों लिम्ब्स में लेवल ऑफ द मर्करी जो है कांस्टेंट रहता है। इट इंडिकेट्स दैट प्रेशर इज इक्वल। अब चूंकि वेपर्स की तादाद जब यहाँ पर बढ़ती जा रही है तो ये वेपर्स जो हैं दे अप्लाई प्रेशर ऑन द मर्करी इन दिस शॉर्टर लिम्ब, विद द रिजल्ट इस साइड पे मर्करी की लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और ये दूसरा साइड जो है इसमें मर्करी की लेवल जो है वो इनक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ जूं यहाँ पर वेपर्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर मर्करी लेवल जो है ये भी बढ़ती जाएगी। तो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ मर्करी इंडिकेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं जब ये प्रोसेस हो रही है एवापोरेशन एक साइड से और दूसरी साइड से कंडेंसेशन हो रही है, तो एक स्टेज ऐसा भी आएगा जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। तो जब यहाँ मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल वापस लिक्विड में तब्दील होंगे इनकी तादाद भी बढ़ जाएगी। यानी कंडेंसेशन जो है पहले तो एवापोरेशन होगी, कंडेंसेशन नहीं होगी क्योंकि ऊपर स्पेस बहुत ज़्यादा खाली है। मगर जब ऊपर की स्पेस बढ़ती जाएगी, फिल होती जाएगी, तो फिर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मोशन के दौरान इस लिक्विड सरफेस के साथ भी कोलाइड करेंगे, तो वापस लिक्विड में चेंज होगी, दैट इज कंडेंसेशन भी होगी। पहले खाली एवापोरेशन, वक्त गुजरने के साथ साथ कंडेंसेशन भी हो जाएगी। फिर एक स्टेज ऐसा भी आएगा जब रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगी। यानी जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के चेंज होते हैं इनटू वेपर्स
उतने ही मॉलिक्यूल वेपर्स के चेंज होते हैं इनटू लिक्विड। दैट मीन्स रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। वो हमें कैसे पता चलता है कि इस वक्त रेट ऑफ एवापोरेशन इक्वल टू कंडेंसेशन है? उस वक्त चूँकि मॉलिक्यूल्स की तादाद, वेपर्स की तादाद यहाँ स्पेस में कांस्टेंट रहेगी, इसलिए वो एक कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि अब इस मानोमीटर में मरकरी लेवल जो है वो कांस्टेंट रहेगी, अब मरकरी लेवल इंक्रीज नहीं होगी। जिस वक्त मरकरी लेवल कांस्टेंट रहती है इन द मानोमीटर, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। दैट मीन्स सिंपली एन इक्विलिब्रियम स्टेज इज मेंटेन्ड। तो अब मतलब की बात पे आते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेटस में जिस वक्त इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो रहा है, पहले आप एक बात फिर से गौर से सुनिए। जैसा कि आपने पढ़ा है गैसियस स्टेट में, गैसेस जो हैं दे एक्सर्ट प्रेशर। जैसे बैलून में हम हवा भरते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो उस वजह से बैलून की सरफेस जो है या बैलून जो है वो एनलार्ज हो रहा है। अब आप जितना ज़्यादा एयर भरते जा रहे हैं उतना ही बैलून बढ़ता जा रहा है। तो कभी कभी अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वॉल ऑफ द बैलून इस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो बैलून फट जाता है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, प्रेशर अगर अंदर का ज़्यादा होगा। तो ये प्रेशर क्यों एक्सर्ट होता है? इट इज़ बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद द सरफेस ऑफ द बैलून। इसी तरह से यहाँ पर भी जो वेपर्स इनटू द स्पेस गए इस कंटेनर के ऊपर वाले स्पेस में, ये वेपर्स चूंकि इन डिफरेंट डायरेक्शंस कोलाइड करते हैं, तो इस गैस के मरकरी के साथ भी कोलाइड करते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यहाँ पर इट विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो इस पर भी प्रेशर एक्सर्ट होगा। इसी तरह से ये कोलाइड करते हैं विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसलिए ये मॉलिक्यूल इस लिक्विड सरफेस पे भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। स्टार्ट पे इन द बिगिनिंग दिस प्रेशर विल बी लो, बट एज द रेट ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल, दिस प्रेशर आल्सो बिकम्स इक्वल। एक ऐसा स्टेज भी आएगा जब प्रेशर बराबर होगा। अब इस प्रेशर में कोई इंक्रीज या कोई डिक्रीज नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो प्रेशर ये वेपर्स एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, the pressure exerted by the vapors of the liquid on the surface of the liquid, at equilibrium state, at equilibrium state at a given temperature, is called as vapor pressure। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? यानी जिस वक्त इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर मेंटेन होता है, इन लेवल ऑफ द लिक्विड एंड द मर्करी कॉलम रिमेन्स कांस्टेंट, तो इस वक्त इस स्टेट पे क्या होता है? ये वेपर्स एक फिक्स्ड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो इस वक्त क्या हुआ होता है? इस वक्त कंडेंसेशन और एवापोरेशन के दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ होता है। तो जिस वक्त एवापोरेशन और कंडेंसेशन के दरमियान क्लोज्ड कंटेनर में इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ होगा, तो उस स्टेज पे ये वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट यहाँ पर हुआ एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, इसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो मैंने बता दिया ये जो वेपर प्रेशर है इट इज़ एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी एक गिवन टेम्परेचर पे ये जो वेपर प्रेशर है इसका फिक्स्ड वैल्यू है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उससे वेपर प्रेशर भी चेंज होता है। इसका मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर जो है ये सिर्फ वेपर प्रेशर जो है ये सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट का जो प्रेशर है इतनी सी बात नहीं है, बल्कि इसमें दो चीज़ें हैं जो अहम रोल प्ले करते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड जो है, जैसे बेंजीन है, टॉल्यूइन है, अल्कोहल है, वाटर है, एस्टोन है, एसिटिक एसिड है, सारे लिक्विड्स का वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर एक जैसा
नहीं है, इनका टेम्परेचर वेरी, इनका वेपर प्रेशर जो है वो वेरी हो जाता है एट ए गिवन। अगर एक ही टेम्परेचर सबों का रखेंगे तो फिर भी वेपर प्रेशर सबों का एक जैसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। ऐसा क्यों है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से वेपर प्रेशर चेंज होता है। यानी रूम टेम्परेचर पे एक वेपर प्रेशर होगा फॉर ए पर्टिकुलर लिक्विड, फिर इसी लिक्विड के लिए एट अनदर टेम्परेचर द वेपर pressure will be different. That is, these are the two factors. One is nature of the liquid and another is temperature, which are responsible for vapor pressure. In vapor pressure का value क्या होगा? That will be decided by these two factors, nature of the liquid and temperature. और ये जो vapor pressure है, इस vapor pressure के अपने effects हैं। इसका effect क्या है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, दैट इज़ नेचर ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर, इनके बारे में थोड़ी सी बात होगी और फिर इसका इफेक्ट क्या है। तो इस वेपर प्रेशर का सबसे बड़ा इफेक्ट जो है दैट इज़ ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, तो वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो फॉर टुडे इट इज़ सफिशेंट। होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। तो कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम हो या कहीं पे अंडरस्टैंड ना हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। आई विल इंशाल्लाह बी एट योर डिस्पोजल। थैंक यू वेरी मच।